Hello, very good morning, student of Shreyas Vidyalaya English Medium Standard 9. We are taking today Unit 4. Standard 9, Unit number 4, Truly Beautiful Mind. This lesson is regarding a great person, great scientist, Albert Einstein. Albert Einstein was born in 14 March 1879 in German city of Ulm, without any indication that he was disdain for greatness of the country. His mother thought Albert was a freak. What is the meaning of freak? Freak means a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look for thing like others. दूसरे से थोड़ा अलग होता है ना, एब नॉर्मल जिसको बोलते हैं ना, जो बराबर नहीं होता है, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, उसके लिए फ्रिक शब्द यूज़ किया है. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. और सच बात ये थी कि वो जो बच्चे थे ना, तो उनका सर अपने शरीर से बड़ा था, थोड़ा बड़ा था. Number 2. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. जब 2 साल और 6 महीने के थे तब वो बातें नहीं कर सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब बोलना सीखे तो हर चीज़ वो 2 बार हकलाते थे, 2 बार बोलते थे. Einstein did not know what to do by the other children, and his playmates called brother boring. उसको brother boring के नाम से उसके दोस्त लोग बुलाते थे. So the youngster played by himself. Here is some interesting matter. Otto Neguevater, the historian and Asian mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterized as a legend, but that seems fairly authentic. As he was a late talker, his parents were worried. At last, at the supper table on night, he broke his silence to say, "The soup is too hot." Greatly revealed, his parents asked why he had never said the word before. Albert replied, "Because up to now everything was in order." उसने बताया, वो पहले क्या बोला, ये बोला कि भाई सूप बहुत ही गर्म है. बोले अभी तक क्यों नहीं बोला था? बोला कि सब बराबर ऑर्डर से चल रहा था, इसके लिए नहीं बोलता था. Much of the time he especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are other wheels?" वो छोटे थे तो ज़्यादा करके खिलौने से खेला करते थे. और वो छोटी उसकी सिस्टर थी माजा, उससे खेलते रहते थे, उसको देखते रहते थे. अभी स्कूल का एक्सपीरियंस ऐसा है. ए हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट what Einstein choose a profession wouldn't matter because he's never make a success in anything. कि भाई आइंस्टाइन आगे चलकर क्या प्रोफेशन चूज़ करेगा वो तो बात बाजू में रहने दो, वो कभी सक्सेस होगा भी उसकी बात करो.
Einstein began learning to play a violin at the age of 6. 6 साल की उम्र में वो वायलिन बजाना सीखे, बिकॉज हिज मदर वांटेड टू हिम टू, उसकी मम्मी भी चाहती थी. द लेटर बिकम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग हिज स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. एमेच्योर का मतलब क्या? डूइंग समथिंग फॉर पर्सन एंजॉयमेंट रादर देन ए प्रोफेशन. अपनी खुशी से जो करता है मस्ती में, उसकी बात करते हैं. बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old. And scored good marks in almost, ये 15 months जो लिखा है ना, वहाँ ईयर आएगा. Almost very subject. Einstein had the school's regimentation and often chased with his teacher. At the age of 15, Einstein felt so stiff that he left the school for good. अभी वो उसने म्यूनिच क्यों छोड़ा? म्यूनिच क्यों गया वो वहाँ से? उनसे कारण कि उसको स्कूल की जो डिसिप्लिन थी ना, जिसको रेजिमेंटेशन कहते हैं. रेजिमेंटेशन का मतलब क्या है? ऑर्डर टू डिसिप्लिन टेकन और एक्सट्रीम हार्डली डिसिप्लिन में रहना उसको पसंद नहीं था. और स्टिफल्ड का मतलब क्या है? अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड. The previous years, Albert's parents had moved to the Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. म्यूनिच से थोड़ा अच्छा खासा लिबरल सिटी था, वहाँ वो पढ़ने के लिए गए. Einstein was highly gifted the mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at the university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with a walrus mustaches. उसकी कैसी थी? वॉलरस की जैसी लंबी लंबी थी मुस्टैच, बराबर. लिबरल का मतलब यह है विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन. यहाँ देखो उनके 2 फोटो दिए हैं. आइंस्टाइन 1900 में जब 21 साल के थे तब का, और आइंस्टाइन इन 1955 एज वी रिमेंबर हिम नाउ. और ये उनका जो फ़ोटो है पुराना, जो 1955 में एक्सपायर्ड हो गए, उसके पहले का है. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom is found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree. सर्ब यानी सर्बिया की वो लड़की थी. सर्बिया की जो लड़की थी वो यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, क्योंकि डिग्री उनको यूरोप में कहीं नहीं मिलती थी, बहुत ही कम जगह पर मिलती थी. इसके लिए वो यहाँ आई थी. यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में गर्ल्स को पढ़ने की इजाज़त थी और वहाँ मिलती थी उनको. University of Zurich was one of the few
in Europe where the woman could get degree. Einstein saw in her an ally against the Philistines. अभी देखो एलाई का मतलब क्या है, फ्रेंड बना लेना, अपन अपने दोस्त बना लेते हैं ना वैसा। अभी फिलिस्टीन का मतलब है वर्ड यूज टू डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट द पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक। जो साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं ज़्यादा करके उनको साइंस ज़्यादा पसंद हो, उसको आर्ट्स, ड्राइंग, संगीत ऐसा पसंद नहीं होता है। Those people in his family and the university with whom he was continuously at odds, the couple fell in love. वो दोनों के बीच में प्यार हो गया। Let's serve in which they put their affection into words. अभी ये दोनों के बीच में चल रहा था और अभी जोकिंगली और उनके ये जो चल रहा था फिर वो शादी कर लेते हैं। Age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave a private lessons, finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. BERN बर्न भी एक सिटी का नाम है, जर्मन सिटी का नाम है। While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to having jokingly called the desk drawer work with the Bureau of Theoretical Physics. उनका एक डेस्क ड्रॉअर था, जो भी उनके दिमाग में विचार आता था वो लिखते थे, और ये जो महत्व की सब बातें थे वो ब्यूरो ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स नाम का उनका एक जो डेस्क था, डेस्क के अंदर रखते थे। One of the famous paper in 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. अभी देखो उन्होंने जो पेपर्स रजू किए उसमें थियरी ऑफ रिलेटिविटी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थियरी ऑफ रिलेटिविटी? रिलेटिविटी का मतलब इसके अंदर ऐसा होता है कि समय और अंतर दोनों एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें बदलते रहते हैं। समय और अंतर है कुछ एक साथ एक सलीके नहीं चलते हैं, वो उन्होंने साबित किया। इसके आधार पर उन्होंने जो शोध की थी उसका नाम था थियरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने क्या बताया? इंडीड two perfectly accurate clock will not continue to slog the same time object come together again after a journey of one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy. इसके आधार पर उन्होंने जो प्रख्यात सूत्र उनका है E=mc² का संशोधन किया। अभी एब्सोल्यूट का मतलब क्या था? मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन विथ एनीथिंग एल्स। पूर्णतः सचोट, लेकिन सचोट नहीं होता है, ऐसा उनका कहना था। देखो इन्होंने एक बार एक उदाहरण दिया था, यहाँ नहीं दिया है। टिम एंड टॉम दोनों एक ही साथ एक घड़ी बांधते हैं। इसमें से टिम अवकाशयान में बैठकर आकाश में जाता है, अवकाश से चक्कर लगाकर फिर वो वापस आता है यान के अंदर। तो उसको आने में
3 साल लग गए, लेकिन इंडिया पृथ्वी के ऊपर 6 साल हो गए थे। और आके देखा तो टॉम 60 ईयर का था और टिम 30 ईयर का था। मतलब क्या हुआ कि दोनों के हाथ में घड़ी तो एक सी बांधी थी, लेकिन समय और अंतर एब्सोल्यूट नहीं है। आपको भी मालूम है, कभी कभी गाड़ी फास्ट चलती है तो बाजू वाली गाड़ी बाजू में से निकल जाती है, लेकिन वो चलती रहती है। तो इसी तरह से ये रिलेटिविटी का सिद्धांत उन्होंने बनाया। इसके आधार पर, मास और एनर्जी के आधार पर E=mc² का जो उन्होंने फॉर्मूला दिया, जो प्रख्यात हो गया। इन दिस मैथमेटिकल एजुकेशन, E स्टैंड फॉर एनर्जी, એટલે E=एनर्जी, एनर्जी इज मास एंड स्पीड का स्क्वायर जो होता है, इतना होता है एनर्जी का। ऐसा उन्होंने साबित किया। व्हेन यू सीट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours, इट सीम्स 2 minutes। कोई अच्छी लड़की के साथ आप बैठते हो, उसको देखते रहते हो तो टाइम जल्दी चला जाता है। और अगर आपको कोई ऐसी बुरी जगह पे बैठा दो तो 2 मिनट भी गई हो तो जैसे 2 घंटे हो गए ऐसा लगता है। तो समय इज़ नॉट सापेक्स, इट्स नॉट एब्सोल्यूट, ऐसा उनका कहना था और ये साबित भी किया उन्होंने। When Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert, he wanted to marry Mileva right after finishing his study, but his mother was against it. उनकी मम्मी उसके विरोध में थी। She thought Mileva, who was 3 years older than his son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you. His mother said, Einstein put the wedding off. कि भाई ये शादी कैंसिल कर, ऐसा बोला। अनरेवलिंग का मतलब स्टार्टिंग टू फॉल, उसकी लाइफ अनरेवलिंग हो रही थी, गिरने वाली थी ऐसा। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, फिर भी आखिर वो लोग ने मैरिज किया। एंड हैड 2 सन, उनको 2 बच्चे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड, वो मैरिज भी फ्लैटर्ड हो गया, फेंटेन हो गया। फ्लैटर्ड का मतलब बिकम वीक। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज was losing her intellectual ambition and becoming unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1990. 1903 से लेकर 1919 तक चलाया, फिर वो दोनों जुदा हो गए। Einstein married his cousin Elsa the same year. Einstein new proposal chapter Convenience with the Rise to World Frame in 1915. He had published his general theory of relativity, which proved a new interruption of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field. The new papers proclaimed his work as a scientific revolution. Deflected का मतलब होता है change direction because of something. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with the honor and invitation from all the world and lauded by the press. तो उन्होंने एक बात साबित की यहाँ
ये आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने जो एक सिद्धांत बनाया था वो ये भी था। एक्चुअली व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, 2 clocks already placed. Yes sir. ये देखो यहाँ 2 क्लॉक दी है, एक बीच में एक साइड में है और दूसरी बार है। तीनों के समय में फ़र्क है। चाहे उसको एक ही टाइम पे सेट किया हो फिर भी वो उसके अंदर ये हो जाता है। कारण क्या है उसके अंदर कि रिलेटिविटी जो होती है उसके अंदर एक्यूरेट क्लॉक्स रहती नहीं है। डिस्टेंस और टाइम दोनों के बीच में तालमेल नहीं है, वो सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है ऐसा। So already look this scene. This is the sun and other way there is a star. जब पृथ्वी के बीच में सन आ जाता है, क्योंकि सन हैज़ अ वेरी ग्रेट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बीच में जो एक स्टार है, वो जो स्टार है उसकी वजह से उसके जो लाइट है वो ग्रेविटेशन की वजह से अपना रास्ता छोड़कर दूसरी जगह वो अपन को दिखाई देती है। तो देखो इसके अंदर लिखा है उसने द एक्चुअल स्टार कहाँ है वो, और अपन को रिफ्लेक्ट होते दिखता है किधर। जैसे यहाँ सामने ही है लेकिन है पहले यहाँ दिखता था अपन को, अभी वो यहाँ दिखता है। तो ये जो सन है यानी जो भी मास है, मास का इसके अंदर असर होता है। इसके लिए E=mc² जो दिया है उसके अंदर ये मास जो है यानी सन का ग्रेविटेशन है उसका भी उल्लेख होता है। फिफ्टीन नंबर, Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was served with honor and invitation from all over the world and lauded by the press. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. 5 years later, the discovery of the nuclear fusion in Britain, in Berlin, had American scientists, physicists in uproar. Many of them had fled from the fascism just as Einstein had, and they were afraid of the Nazis could build and use an atomic bomb. At the urging of a college, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in the port might destroy the whole port together with the same of the surrounding area too. These words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities Hiroshima and Nagasaki in August 1945. तो हुआ ऐसा, आइंस्टाइन ने उसको पता चला कि न्यूक्लियर फ्यूज़न जो होता है वो बहुत ही डेंजर होता है। उसको पता चल गया था
कि भाई सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न ही होता है, इसकी वजह से इतनी गर्मी होती है। तो छोटा सा भी जो अणु होता है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न में बहुत ही बड़ा नुकसान कर सकता है। तो ये बात अमेरिका में रहते थे, वो अमेरिका इमिग्रेट होके चले गए थे, तो वहाँ के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को बताया कि इस तरह का आप रोको। तो अमेरिका ने खुद 2 बम बनाए और हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर डाले। तो आइंस्टाइन हर तरह से सही थे। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और इससे उनको बहुत ही आघात हुआ। दिस टाइम ही रोट पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन। यह पब्लिक मैसिव का मतलब क्या है? ए लेटर रिस्पेक्टिवली especially long as ऑफिशियल, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल लेटर लिखते हैं ना, उसको कहते हैं मैसिव ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने ऐसा बनाया है, बोला यूनाइटेड नेशन को कि आप वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ और इस तरह का ऐसी कार्यवाही को रोको। अनलाइक द लेटर वो रिजल्ट इन दिस वन ऑफ द मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन उसका कोई असर हुआ नहीं। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। बाद में वो पॉलिटिक्स के अंदर जाना ही ज़्यादा इन्वॉल्व हुए। हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary of the world citizen as much as a scientific genius. तो ये इस तरह का लेसन था आइंस्टाइन का। आई जस्ट ओनली एक्सप्लेन यू, उसको पढ़ना सुनना। अभी दूसरी टाइम I will give you all the question answer. Okay? Still, bye.